गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, व्यवहार में लाएं। आज का वचन हमारे लिए मिलता है भजन संहिता 25 उसका 16 से 19 पद तक। Psalm 25:16-19। हे यहोवा, मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है। तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। Psalm 25 verses 16 to 19, and it says, it's a lot of reading. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. Look on my affliction and my distress and take away all my sins. See how numerous are my enemies and how fiercely they hate me. आप देखें, यहाँ जो दाऊद है अपने जीवन के उन टाक्षणों में जा रहा है, दुखों में जा रहा है, जहाँ वो नितांत अकेला है, जहाँ वो जो है परेशान है क्योंकि उसके शत्रु हैं बहुत बढ़ गए हैं। आप देखें इस समय में वो जो है बजाय अकेला परेशान होने के, वो जो है टर्न होता है परमेश्वर की ओर, टर्न होता है परमेश्वर को पुकारता है। अकेले रात में इधर उधर टर्न करने के बजाय जो है परमेश्वर को पुकारता है, क्राई टू गॉड। आप देखें दूसरा शमूएल 15 अध्याय 13 से 15 पद। 2 Samuel chapter 15 verses 13 to 15. A messenger came and told David, "The hearts of the people of Israel are with Absalom." Then David said to all his officials who were with him in Jerusalem, "Come, we must flee, or none of us will escape from Absalom. We must leave immediately, or he will move quickly to overtake us and bring ruin on us and put the city to the sword." The king's officials answered him, "Your servants are ready to do whatever our lord the king chooses." Same chapter and 21 verse. 31. 2 Samuel chapter 15 verse 31. Now David had been told, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. So David prayed, "Lord, turn Ahithophel's counsel into foolishness." आप देखिए दाऊद का अपना लड़का अबशालोम, उसका अपना सहयोगी उसके विरोध में है। जब उसको लोग कहते हैं जब अपना ही कोई हमारे विरुद्ध हो जाए, चोट अपने से आए तो बहुत जोर से लगती है। आप देखें उससे पहले है जोसेफ, राजा जोसेफ, ये जो जोसेफ जवान है उसके ऊपर दोष लगे। दोष क्या लगा कि उसने व्यभिचार किया है, उसे भागना पड़ा। इस समय वो अपने बाप से दूर है। जेनेसिस चैप्टर 39 और 21 to 23। 21. It's only 21. Genesis 39 verse 21. The Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. And then verse 23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. And through Joseph is alone, he is blamed, but he had favor in eyes of the warden. आप देखिए verse 18 और 17। Verse 18, it says 17 in 17, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। Turn to me and be gracious to me, for I'm lonely and afflicted. Relieve the troubles of my heart and free me from my anguish. आप देखिए दाऊद जो है परेशान है, उसको पीड़ा है दिल में, जो दर्द है
बढ़ गया है। वो क्या बढ़ गया है कि वो अकेला है और उसके जो अपने अपने लोग हैं वो उसको सता रहे हैं। आप देखें इसका इलाज बाइबल में है। पहला पत्र उसका 5वां अध्याय 7 पद। 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. आप देखें हमारे पास जो मसीह के पास जो है एक इलाज है। क्या इलाज है? अपने बोझ को जो है परमेश्वर में डालना है। वी हैव टू शिफ्ट बर्डन टू गॉड। आप देखें हमें अकेले अकेले जो है दुख नहीं भोगना है। हमारे बोझ को जो है हमारे बोझ को है परमेश्वर डालना है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 16 पद। Hebrews chapter 4 verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. एक बात जो कही गई है फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 5 और 7 पद। Philippians chapter 4 verses 5 to 7. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. यहाँ जो बड़ा And the है peace- किसी बात की चिंता मत करो। And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. आमीन आमीन। प्रभु की जो शांति है हमारे हृदय को हमारे विचारों को सुरक्षित रखेगी। आप देखें पद 18 में क्या लिखा है। वर्स 18। Psalm 25 verse 18. It says, Look on my affliction and my distress and take away all my sins. तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। आप देखें हमारे पास जो है ये उपचार है। हम जो हर महीने प्रभु के सामने जाते हैं भोज के लिए होली कम्युनियन पगशा, हम जो है उसके सामने जाकर हमारे गुनाहों का इनकार करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 27-30 पद। 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 30. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. आप देखें जो इलाज है वो है हमारे पास्ट का, हमारे प्रेजेंट का, हमारे फ्यूचर का। आप देखिए आगे जो है पौलुस ने दुख तो भरा, वो भरा दुख क्यों? वो परमेश्वर की इच्छा में था। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 7 पद। 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9. Or because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. आप देखें अब जो प्रश्न आता है किसने पाप किया है। आप देखें बंधा है और जो चेले हैं उससे प्रभु से पूछते हैं प्रभु किसने पाप किया, क्या इसने या इसके माँ बाप ने जो अंधा जन्मा है। आप देखें यूहन्ना उसका 9 अध्याय 2 और 3 पद में प्रभु क्या कहता है। John 9, 2 and 3. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?
Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Amen. परमेश्वर काम उसमें, महिमा जो उसमें प्रकट हो। Amen. आप देखें यहाँ जो दाऊद है वो जो है परेशान है कि उसके गुनाह है, उसके ऊपर बोझ है। He had formidable pain in his life. आप देखें वो परेशानी का जो कारण है वो है खुद। आप देखें यहाँ जो Lord allowed him to go through this। आप देखें एक्सेप्ट 14 में, निर्गमन 14 में 14 आप देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, आज तुम जो है परमेश्वर के उद्धार को कार्य देखोगे। आप देखें परमेश्वर ने काम किया, मूसा को इस्तेमाल किया, और जो इजिप्शियन थे वो जल में डूब गए, समुद्र में डूब गए, और इजरायली जो है बाहर उतर गए सूखी भूमि पर। आप देखें, बात हम देखते हैं कैसे जो है परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ है। आप मेरे साथ है, मेरे मित्र। आप पर भी जो है शायद दुखों का बोझ है, आप भी शायद अकेले हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। आपके जो मित्र हैं वो आपको सताते हैं, आपके परिवार के लोग आपको सताते हैं। अकेले दुख भोगने की जरूरत नहीं है, रात्रि में अकेले जो जागने की जरूरत नहीं है। टर्न टू गॉड, अपने जो बोझ को परमेश्वर पर सौंप दीजिए, डाल दीजिए। क्यों? उसे तुम्हारा ध्यान है, हमारा जो महाजक है हमारा ध्यान करता है। आप देखें परमेश्वर के पास आइए, अपने बोझ को जो है उसको डाल दीजिए, आपको जो है इलाज मिलेगा, वो आपको छुटकारा देगा। उससे मांगे, वो आपके साथ है, आपको संभालेगा। आमीन, हालेलुया। पुकारिए उससे, वो आपको छुड़ाएगा। वो जी हमारी प्रार्थना है, मेरे अपने लिए, मेरे परिवार के लिए, हमारे मित्रों के लिए, आप उन्हें भी छुड़ाइए, ताकि वो जो है अकेले में, परेशानी में, जिस समय पर दोष आता है, वो जो है छुड़ाए जाए, आश्वस्त हों। Lord, you release them. Be with them, bless them, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. For now may the love of God the Father and grace of His Son Jesus Christ and sweet communion of the Holy Spirit be rest and abide with each one of us for now and forever. More. Amen. Amen. हमें डर रहिए, वो की ओर जाइए, उसे पुकारिए, वो आपको जो है छुड़ाएगा। आमीन, आमीन।